والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت گرامی، آج کے پہلے خطبے میں صرف مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو بھی اس عنوان پر جاری ہے کہ آپ جو اسے کہتے ہیں اور ابھی تک عبادت کیا ہے، اور جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے عبادت و عبودیت کیا ہے۔ اس موضوع پر چند باتیں مستقل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت میں اور عبودیت میں فرق نہیں کر پاتے، کیونکہ عبادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ہم تعریف اور تمجید کریں اور اس کے سامنے سراپا تسلیم حمد رکھیں اور اس کے سامنے خاضع اور خاشع رکھیں، کیونکہ اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں، اور جس چیز سے اس نے ہمیں روک دیا ہے ہم اس سے باز رہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اب اگر ان ذمہ داریوں کو اور واجبات کو ہم ادا کرتے ہیں تو کہا جائے گا ہم نے عبادت کی، اور اگر ہم ان واجبات کو اور ذمہ داریوں کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے عبادت کو ترک کر دیا۔ اب رہا سوال یہ کہ بندے کا تعلق بندگی سے ہے، یعنی اگر بندے کے اندر بندگی پائی جائے گی، ایک بندہ ہونا پایا جائے گا، ایک اس کے اندر انکساری پائی جائے گی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بندگی کا جذبہ ہے، یعنی عبادت کے ذریعے یعنی جو صفت اور جو کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یا تو وہ اچھائی کی بنیاد پر ہوتی ہے یا برائی کی بنیاد پر کوئی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اچھی صفت پیدا ہوئی اچھی چیزوں سے یاد کی جائے گی، اور اگر بری صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم بری صفتوں کے ذریعے کیا ہوں گے، یاد کیے جائیں گے۔ اب یہ کنڈیشن جو آ کے ہمارے اوپر صفت اور موصوف کے ذریعے پتہ لگاتی ہے، تو انہیں میں سے ایک چیز جو عبادت ہمیں عبودیت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، یہ ہوتا ہے کمال۔ یعنی اگر ہم عبادتوں کے ذریعے اللہ کی بندگی تک، اس کے بندہ ہونے تک اپنے آپ کو سنوار نہ سکیں، اپنے آپ کو آگے نہ لے جا سکیں، تو یقین جانیے کہ ہمارا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے، کیونکہ بالکل ویسے ہی جیسے عبادت کسی کی عادت بن جائے تو بیکار ہے، اور اگر عبادت کسی کی معرفت بن جائے تو یہ کمال ہے۔ آج آپ پڑھ کر کے دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی عادتوں میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور جب عادتوں میں ان کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انہیں اپنی عادت کے اندر سدھار پیدا کرنا پڑے گا، اور اگر یہ اپنی عادت کے اندر سدھار پیدا نہیں کرتے تو یقین جانیے بندگی کا جو لطف ہے، بندگی کا جو کمال ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، اصل میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرے میں ہر آنے والا مسجد میں داخل اور خارج ہونے والا نکلنے والا
सब इसके अंदर कैद है कि कौन आया, कौन नहीं आया, कौन किस वक्त में आया, कौन किस मिजाज के आया, कौन किस सलीके और तरीके से आया। एक इंसान जिसको पता ही ना हो कि मतलब मस्जिद में कैमरा भी लगा है और आप उसे पलट करके टोक दिए कि भाई साहब आप मस्जिद में मुनासिब लिबास पहन करके आइए, तो फौरन वो यही कह के लड़ लेगा कि मैं मस्जिद में क्या खराब लिबास पहन करके आता हूँ। एक मुनासिब लिबास और एक खराब लिबास, दोनों में बहुत फर्क है। मुनासिब लिबास उसे कहते हैं, मैं इसकी वजाहत इसीलिए किए दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे यानी मफ़हूम ऐसे होते हैं जो पेश तो कर दिए लेकिन वो मिस्दाक नहीं तलाश पाते कि उसका मिस्दाक कौन है, किन अफराद के ऊपर है, किनके ज़ात के ऊपर है, किनकी सिफात के ऊपर है, ये नहीं हो पाता। अब जिसको पता नहीं आके अंदर कौन लड़ा जाएगा कि आप बताइए मैं मस्जिद में कब बेगूंगे और बेमकसद लिबास पहन करके आया। अब जब मैं बेमकसद और बेमौका लिबास पहन करके आया तो नतीजा क्या होगा? अगर वो समझदार और शऊरमंद होगा तो उसे क्या करना है? अपनी गलती मान लेगा। और इस नामुनासिब लिबास पे आप दाखिल हुए कि मालूम दिया एक इंसान है उसकी शर्ट खुली हो, एक इंसान है बाल एकदम उजड़े हुए, मालूम लिया वो चीज़ें कि जो हम मेहमानदारी में पहन करके जिस लिबास में जाते वो लिबास पहन के मस्जिद के अंदर, अब उसे अगर आप दिखा दिए तो वो अपनी गलती मानने के बजाय कहेगा अब मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा। तो क्या ऐसा शख्स उबूदियत से नजदीक हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके मिजाज में अपनी गलती कबूल करने का मादा नहीं है, और जब अपनी गलती कबूल करने का मादा नहीं है तो ऐसा इंसान तरक्की भी नहीं कर सकता, ऐसा इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता। क्यों? इसलिए कि जिसको अपनी गलती और अपनी खामी नजर ना आए वो आगे क्या तरक्की करेगा। और मिसाल मैं आपको लेकर के जाता हूँ, एक इंसान की आदत हो वजू करने की इस तरीके से कि वो आया और आने के बाद मुंह के ऊपर पानी का मार दिया छींटे और वो पूरे चेहरे के ऊपर पानी को पहुंचाना भूल गया। अब यह भूल गए या आदत है, दोनों बात मैं कह रहा हूँ। या वो भूल गया या उसकी आदत है कि चेहरे पर लिया वजू करने के लिए और उसने चेहरे पर धुलने के बजाय चेहरे पर मान दिया पानी, ना उसने पेशानी से लेकर चोटी तक और नाकान से लेकर कान तक अपने चेहरे को नहीं धोया, पानी नहीं पहुंचाया। उसके बाद वो जब हाथ धुलता है तो हाथ लिया बस पानी डाल दिया हो गया। ये उसकी आदत है या आदत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसे शख्स को अगर आप पलट करने के लिए भाई साहब इतनी उम्र आपकी हो गई है, जरा सा आप वजू कर सही किया कीजिए, तो वो ये नहीं कहेगा साहब हाँ हो सकता है गलती पर हो, आप इस्लाह कर रहे, आपका बहुत शुक्रिया, वो फौरन पिनक जाएगा क्या इतने दिनों से जो मैं नमाज़ें पढ़ते आ रहा हूँ वो नमाज मेरी गलत है। और उसके बाद वो आकर के ये कहेगा फला मौलाना के सामने हमने वजू किया, फला के सामने ये किया, उन्होंने तो नहीं टोका, उन्होंने नहीं टोका, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो। ये भी तो मुमकिन है कि जिसको हम गवाह बना रहे हैं, जिसको हम दलील बना रहे हैं, हो सकता है उसकी नज़र हमारे वजू करने के तरीके पर ना पड़ी हो या हमें ना देखा हो। अब ना देखा हो तो इसका मतलब हम गवाह किसे बना रहे हैं? उसको बना रहे हैं कि ताकि हम अपनी गलती कबूल ना करने पाए, बल्कि एक गलती की एक गलती और कर बैठे। अब ईमानदारी बताइए, हम इबादत कर रहे हैं या इबादत के जरिए उबूदियत तक पहुँच गए? ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दी, वरना बहुत सारे लोग तो नमाज पढ़ने में इधर उधर भी देख लेते हैं। समझ आप जरा सा खट खुट कीजिए तो मान लीजिए अभी अगली सफ वाला
اس سے آگے مولانا صاحب کا پوری دماغ ادھر ادھر چلا گیا، کون تھا کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب میرا دیا. اب اگر انسان ہے بھول چوک ہو سکتی ہے، ہر کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسی چیز کو انسان ہائڈ جائے، آکڑ ہو جائے، اپنی غلطی نہ مانے، اپنی غلطی کا اقرار نہ کرے یا پھر جائے، جیسے اپنے اگر آپ کے ذہن میں تو پچھلے ہفتے کی بات یہ تھی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر جو قانون چلے گا کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر قانون اللہ کا نافذ ہوگا، اور یہاں پر آنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب کے اوپر اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اجازت دی جائے گی کہ صاحب آپ شریعت کی مخالفت نہ کیجیے. صحیح ہے؟ یہ کب؟ جب ہمارا مزاج گرم نہیں ہوگا تب ہم اس چیز کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. اور اگر ہمارا مزاج خود گرم ہو کہ نہیں صاحب مسجد میں چلے گی تو میری ہی چلے گی، نہیں تو ہم کسی کی نہیں چلنے دیں گے، تو ایمانداری بتائیے پھر تو آپ جا کر کے اپنی الگ مسجد بنا لیا اور اس کو اپنے گھر کا نام دیا، اپنے گھر کو خوب آپ رنگ کیجیے جیسے آپ کی مرضی ہو. لیکن اگر پبلک کے لیے اور اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، سجدہ کرنے کی ہے، جامع مسجد ہے، اس کے احترام کرنے کی ہے، تو یہاں پر کسی کا پرسنل قانون لاگو نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب آ کر کے تنظیم کرنے صاحب میں یہ کروں گا تو کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے. اب اسی کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں مثال دیتا ہوں، چونکہ میری نظریں بہت دور تک مشاہدے میں رہتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں اور تجربہ بھی کرتی ہیں، اور سارے مناظر میرے آنکھوں میں کیپچر بھی ہو جاتے ہیں اور میرے ذہن سے بہت جلدی نکلتے نہیں ہیں. ایک سلوات پڑھیے صحیح ہے. اور جب یہ چیزیں میری نظر میں کیپچر کر گئی، آنکھوں میں اس کی تصویر اور عکس برداری ہو گئی، تو جب تک پچھلا ڈاٹا ایریز نہیں ہوگا تب تک یادداشت جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی کو آپ ذرا سا ملائیے. میں بار بار ایک چیز کو عرض کرتے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں اور آتا رہوں گا، ہمیشہ کہتا رہوں گا، کیونکہ سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر ہے بچوں کے ساتھ مانوس ہونا. یہ سیرت پیغمبر ہے اور سنت پیغمبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیغمبر کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیل بھی لیا کرتے تھے، کھیلتے تھے، ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، تاکہ بچے جب ان سے قریب آئیں گے تبھی تو وہ اسلامیات کی تعلیم حاصل کریں گے. اگر ہم نے ان کو اس فیلڈ سے باہر کر دیا تو یہ سیکھیں گے کہاں؟ میدان میں جا کر کے. یہ سیکھیں گے کہاں؟ فیلڈ میں جا کر کے. یہ سیکھیں گے کہاں؟ میدان عمل سے فرار کر کے. تو یہ سیکھنے کا جو موقع ہے، جو سیکھنے کا چانس ہے، خدا اس چیز کو، اس میدان کو، اس فیلڈ کو کوئی بھی انسان چھیننے کی کوشش نہ کرے. مثلا جیسے مکاتب ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، اگر یہی پڑھانے کے بجائے بچوں کو بھگا دیا جائے خالی، تو آپ ایک موقع بھگا دیے ماں باپ دوسری موقع لے آئیں گے، دوسری موقع بھگا دیے ماں باپ تیسری موقع لے آئیں گے. اس کے بعد جب آپ بھگا دیں گے تو پھر ماں باپ کیا کریں گے؟ کہیں گے اب آپ خود یہاں سے بھاگ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے مشن کو کی جو ایک تربیت دیا تھی آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی کام کن چیزوں میں آتا ہے؟ عبادت میں آتا ہے. علم کا دینا، علم کا سکھانا، تعلم اور تعلیم، یعنی سیکھنا اور سکھانا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. بچوں کی فطرت میں ہی شیطنت ہوتی ہے. ڈاکٹرس وغیرہ سے آپ پوچھیے گا، بچہ خاموش بیٹھ جائے، جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھیے گا بچہ شیطانی کرنا بند کر دے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بیمار ہے. اور اگر یہی شیطانی بچہ کرنے لگے تو اسے کیا کہتے ہیں؟
निकाल के बाहर कर देते हैं, साहब चलो मेरी इबादत में खलल वाक़ हो रहा है। आप जानते हैं पैगंबर की सारी बातें हमारे लिए नमूने अमल है, वरना मस्जिदुल नबवी में बच्चों का आना पैगंबर के ज़माने में और ज़माने कुदरती में बचपने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होश पैगंबर का सवाल करना और पैगंबर का ना छिड़कना बल्कि तस्बीहात में और जिक्र में इजाफा करना, ये कौन सा मैसेज दे रहा है? ये मैसेज यही दे रहा है। कभी आप उन अफराद को हरम में या दूसरी जगहों पर नमाज पढ़ते हुए देखिए जो अपने छोटे बच्चों के साथ जाते हैं, मानो या बाप सजदे में गया, बेटा चढ़ करके उसके पुष्प के ऊपर, क्या बाप ने अपने बच्चे को उठा के चढ़ दिया कि नमाज पढ़ो? कभी कभी आप बहुत सारी वीडियो मुलाहिजा कीजिए तो आपको मिल जाएगा कि बाप अपने बच्चे को कांधे पर लिए हुए, हम रुकू कर रहा है, हम सजदा कर रहा है, हम नमाज पढ़ रहा है, नमाज में कोई खलल वाक़ नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो इस खलल की भरपाई करने वाला ये जाने, इसका पता जाने। हम और आप कौन होते हैं मतलब इस खलल को करने वाले? क्यों? इसलिए कि बच्चों को जब खेलने के लिए हुक्म दिया गया है कि तस्बीह और सजदा से जब ये खेलेंगे, क्यों? इसलिए कि जब इनका रोना अल्लाह इबादत में शुमार करता है। आप समझ रहे हैं, जिनकी बोली हम नहीं समझते, ये जो छोटे बच्चे क्रिया करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते लगते हैं, कभी ये, तो इसके पीछे जो फलसफे बयान किए गए हैं, रीजन बयान किया गया है, वो यही है कि इनका रोना इतने महीने इबादत है कि ये अपने माँ बाप के लिए तस्बीह करते हैं, ये अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये दुनिया में आने के बाद रोते हैं। ये इस तरीके से इसका मतलब फलसफा, हमने बच्चे को सिर्फ रोते देखा, लेकिन रोने का फलसफा किसने बनाया, बताया? मासूमीन ने। कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं पैदाइश के बाद, ये चंद माह जो होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने माँ बाप के गुनाहों के इस्तिग़फ़ार करके ये रोते हैं, परवरदिगार मेरे माँ बाप को बख्श देना। क्या ये चीज़ हम उनकी ज़बानी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। हम तो समय बच्चा खाली बिलिया कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो बिलिया नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है। इस बात पढ़िए समझिए। नतीजे की तरफ एक इशारा किया ताकि जब बच्चे के रोने के फलसफे को हम नहीं समझ पाते, तो हो सकता है मस्जिद में आने के बच्चों के फलसफे को, तस्बीह सजदा से खेलने को, उसके कूदने को, दौड़ने को, हाँ बस इतना ये रहे कि नजीस और पाक का ख्याल रहे। एक मुमय्यज़ बच्चा यानी आए, हम उसे अपने साथ में ले करके आए, आज़ाद न छोड़ दे, मान लिया जा करके वो तस्बीह को तोड़ दे, सजदा को तोड़ दे। भाई एक चीज़ खेलना अलग होता है, जिसे खेल कहते हैं, और किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना अलग होता है। यदि जहाँ पर नुकसान होगा वहाँ पर सजा है, लेकिन अगर जहाँ पर नुकसान नहीं है तो वहाँ पर सजा नहीं है। अब आइए ज़रा सा मैं इसी हवाले से, क्योंकि एक कंडीशन तक मैं ले आया, सवाल ये होता है कि साहब मुस्तहबात और मकरूहात जमात क्या है? समझ रहे? ये चीज़ें चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद हैं जो यानी इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी खुद अमल करते, कभी खुद अमल नहीं करते। मसलन मुस्तहबात नमाज ये है कि अगर पहली जमात में गुंजाइश है तो अकेले दूसरी सफ में खड़ा होना मकरूह है। दूसरी सफ में अगर गुंजाइश है तो तीसरी सफ में अकेले खड़ा होना मकरूह है। तीसरी सफ में गुंजाइश है तो चौथी सफ में अलग खड़े होना ये क्या है? मकरूह है। ईमानदारी से आप बताइए, हम इतनी सी बातों पे तो ध्यान देते हैं कि साहब ये बच्चे आ जाएंगे तो नमाज भी वो हो जाएगी, ये चले जाएंगे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे। वो लोग जो अकेले नमाज पढ़ के पीछे से भागना चाहते हैं, उनसे पूछिए। आप तो उन बच्चों से भी गए गुजरे हो गए जो बच्चे कम से कम आगे आने की कोशिश करते हैं और हम मेरे पीछे क्या करना चाहते हैं।
भेजना चाहते हैं, और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो पीछे से आगे ही नहीं आना चाहते, और अगर आगे बैठते तो वो पीछे, वो सोचते हैं और बाद में ताकि मौलाना साहब की नजर नहीं पड़े। इस सवाल हो गया। समझ ये चीजें क्या है, ये चीजें समझने की। अब ईमानदारी से आप बताइए, पहले सुफूफ में मुस्तहब ये है कि वो लोग शामिल हों जो मुत्तकी परहेजगार, जिनको अपने तक़वा पर इत्मीनान हो। पहली सफ में मुस्तहब ये है, फजीलत ये है कि वो अफराद पहली सफ में शामिल हों कि जो मुत्तकी हों, परहेजगार हों, दीनदार हों, दीन फहम रखते हों। यानी अगर कहीं पर इत्तेफाकन यानी नमाज जमात में इमाम जमात का ज़हन इधर उधर चला जाए तो हम उसके मुंतज़िर न रहें वो क्या कह रहा है। हमारे अंदर भी इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर कहीं पर भूल चूक हो रही है तो हम फौरन बुलंद आवाज में एक टोका दें, चीखे नहीं। टोका देखना और चिल्लाना, पूरी मजमे को शोर मचाना अलग चीज होती है, समझ रहे हैं। इसीलिए मुकब्बिरी का फलसफा भी यही है कि मुकब्बिरी इसीलिए रखी गई है कि आप इमाम जमात से पहले पहले आप अरकान को अंजाम दीजिए। यानी अगर रुकू में जाने वाला है तो आप रुकू के अरकान को इशारा दीजिए, सजदे से सर उठाने वाला है तो आप उससे पहले इशारा दीजिए, वो बड़े होने वाला है तो बेहुदिल्ला आप उससे पहले कहिए। कहा क्यों? कहा ये मुस्तहब बात है, ताकि अगर इमाम जमात को कहीं पर शक हो रहा होगा, पता नहीं दूसरी पढ़ो तीसरी पढ़ो मुझे तीसरी है या चौथी है, तो इससे उसे मदद मिल जाती है। लेकिन अगर मुकब्बिर खुद मुंतज़िर हो कि ये साहब बेहुदिल्ला कहें तो हम कहें बेहुदिल्ला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मुकब्बिर असली मुकब्बिर नहीं है, ये मुकब्बिरी से नामाफियत रखता है। एक सवाल पढ़िए समझिए। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो जमात को बातिल होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों अगर शक में आ गए, साहब मुकब्बिर का भी जहन चला गया और जमात का भी जहन चला गया, तो जो लोग आगे सुफूफ में हैं इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये अपने यकीन पर तो होगा दे कि मालूम मुकब्बिर भी भूल गया और इमाम जमात भी भूल गया, तो अब ये जैसे हमें यकीन है ये तीसरी है तो हम बेहुदिल्लाह तो होगा देंगे। लेकिन अगर हमें शक है और इमाम जमात अल्हम्दुलिल्लाह कहते तशहुद शुरू कर दें तो फिर हमें अपने शक के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यकीन की मंजिल है तब, और अगर शक है तो फिर शक पे भरोसा नहीं। फिर इसी तरीके से दोनों के शुकूर, अगर इमाम को शक है तो वो मुकब्बिर की तरफ जाएगा कि मतलब वो देखिए क्या कह रहा है, और अगर इमाम को यकीन और मुकब्बिर की शक की तरफ है तो इमाम अपने यकीन के ऊपर नमाज पढ़ा देगा, वही नमाज मान ली जाएगी। तो अब सफ़े अव्वल में आने वाले अफराद इस किस्म के क्या होने चाहिए, होने चाहिए। अब मुस्तहब ये है कि ऐसे अफराद आए सफ़े अव्वल में। कभी कभी जब नमाज होती है, देखिए छोटी छोटी बातें चूंकि मैं डिस्कस करते आ गया तो एक बात और डिस्कस कर सकता हूँ। हमें बाज़ औक़ात नमाज को एक मर्तबा ज़रूर सुनना चाहिए, अपनी नमाज को। यानी आप नमाज पढ़िए और रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप किताब को खोलिए और मिलाते रहिए। यकीन के ऊपर अमल ना कीजिए, अपने जहन के ऊपर, अपने जहन के ऊपर यकीन ना कीजिए कि साहब जो मैं कर रहा हूँ वही सही हो सकता है। मुमकिन है जो हम नमाज पढ़ रहे हैं वो हमारी आदत हो, इबादत ना हो। जैसे बहुत सारे अफराद जो यानी कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं, कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वाले अपने कुर्सी पर बैठ करके, इनको अपना फरीज़ा पता होना चाहिए कि हमें कुर्सी पर बैठ करके नमाज के अरकान को बजा कैसे लाना है। या वो अफराद
जो बैठ करके नमाज पढ़ते हैं इन्हें अपना वजीफा पता होना चाहिए कि अगर हम बैठ करके नमाज पढ़ें तो हमें कहाँ पर बैठना है, हमें अरकान कैसे बजा लाना है, हमें किस तरीके से नमाज में इन चीज़ों को पेश। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम अपनी नमाज के जरिए दूसरों की नमाजों को खराब ना करें। यही वजह है कि जो अफराद शरीयत ने बैठ करके हुक्म दिया है कि जो बैठ करके नमाज पढ़ना चाहते हैं वो सुफूफ के किनारे वाले हिस्से की तरफ जाएं ताकि उनसे इत्तिसाल किसी का दूसरी तरफ बरकरार न होने पाए, क्योंकि ये अगर फासला हो गया या ये अगर बैठ करके पढ़ रहे हैं और इनके पीछे पढ़ने वाला तन्हा इंसान है तो जो खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज बैठ के आगे पढ़ने वाला वो है उसके प्रति उसकी जमात से नमाज नहीं होगी। समझ रहे हैं? अब यही हम जो बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं तो अब बैठने में क्या हमें पता है हम रुकू में कितना झुकेंगे, जब समय अल्लाह कहा जाएगा तो हम अपने आप को उठाएंगे, जब रुकू में जाएंगे तो अपने आप को कम करेंगे, जब सजदे में जाएंगे तो आज़ा को रखेंगे। है इसको इसकी रियायत अगर हम कर रहे हैं तो आप पढ़िए और अगर नहीं आ रहा है तो आप सीखिए, नहीं आ रहा है तो आप सीखिए ना। यदि आप अपने किए हुए बस जितना मैं कर रहा हूँ वही अमल है, क्योंकि ये आदत हो सकती है, इबादत नहीं हो सकती है। और जब इबादत से आप उबूदियत की तरफ नहीं पहुँच पाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा इबादत क्या है और उबूदियत क्या है। और बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसना यकुन लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यिआ यकुन लहु किफ़्लुम मिनहा व काना अल्लाहु बिशैइन मुक़ीता। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और हम आपकी खिदमत में इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे करने की सकत रखने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें तो कल अल्लाह के यहाँ हम जवाब दे और हमसे मुआखज़ा किया जाएगा कि तुम्हारे पास मौका था, महल था, तुम्हारे पास कंडीशन थी, तुम्हारे पास असबाब था, तुमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं किया। ये चीज़ें आज उन अफराद के ऊपर ज़्यादा यानी उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है, लागू होती है, कंडीशन अप्लाई होती है कि जो अफराद सिर्फ घर बैठ करके तवक्कुआत की वादी में सैर करते हैं और उनकी अपनी एक ख्याली दुनिया होती है और उसी ख्याली दुनिया के विलन भी वो अपने आप को ही तस्वुर करते हैं। यानी नतीजा भी ये सोचते हैं कि जितना हो रहा है मेरे ख्याल में ये सही है, ये गलत है और मैं कहाँ पर हूँ, तो उस कैरेक्टर को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं और भुला बैठते हैं। देखिए, एक पर्सनल लाइफ जिसे कहते हैं फर्दी जिंदगी
एक सोशल लाइफ जिसे कहते हैं माशरती और समाज की जिंदगी, इन दोनों के अहकाम अल्लाह ने जुदागाना बना रखे हैं और बता रखे हैं। कभी कभी आप अफरादों से गुफ्तगू कीजिए तो अफरादों की नौइयत और कंडीशन का अंदाज़ा यहीं से लगता है जब वो कहते हैं साहब सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप उनसे पूछे सब अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है? तो उनका जवाब यही होता है, भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा हूँ, मेरा घर मेंटेन है, मैं मेंटेन हूँ, मैं सुबह उठा अपनी ड्यूटी पर गया, शाम आया घर पे। अल्लाह के बंदे, ये तेरी पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है? ये इंसान की पर्सनल लाइफ है। सोशल लाइफ अलग होती है। सोशल लाइफ जहाँ पर समाज के हुकूक पाए जाते हैं, जहाँ पर समाज की जिम्मेदारियां उन अफरादों के ऊपर होती है कि जहाँ पर आप क्या करते हैं, मौजूद होते हैं, आप वहाँ पर पाए जाते हैं और आपकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप भी समाज के हुकूक की अदायगी करें। और हमेशा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमेशा शिकवे और शिकायतों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। अगर हम शिकवा शिकायतों की दुनिया से निकल करके अपने आप को सब्र और शुक्र की दुनिया में ले आए तो हमें कभी मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना न पड़ेगा। मसलन ईमानदारी से बताइए, हम जुमा पढ़ने आए हैं और इस वक्त 12:45 हो रहे हैं, सही है? बमुश्किल तमाम 10 मिनट 11 मिनट खुतबा और चलेगा, इसके बाद आप नमाज पढ़िएगा। अब कोई साहब ये सोच करके नमाज को तर्क कर दे, इतनी गर्मी में नमाज पढ़ने कहाँ जाऊँगा, इतनी गर्मी में नमाज कहाँ पढ़ूंगा? और हमारे यहाँ एसी लगी हुई है, मस्जिद में तो एसी भी नहीं लगी है। तो जब हमारा घर जो है वो मस्जिद से कितना है, बेहतर है, तो हमारी नमाज कबूल कहाँ पर होगी? अल्लाह के बंदे, तेरा नजरिया गलत है, तेरा नजरिया गलत है। हमारे यहाँ ऐसे जो इनमें बहुत सारे पायदान वाले हैं कि जिनका नजरिया ये है कि साहब दीन में कहाँ नमाज होती है। कब्र में क्या होगा? कब्र में क्या होगा? एसी लेकर के जाओगे, लाइट बिजली पंखा बैटरी सब लेकर के जाओगे, मोबाइल लेकर के जाओगे, स्मार्टफोन लेकर के जाओगे, बैंक बैलेंस और चेकबुक लेकर के जाओगे। उसके बाद साथ में अपने मुशीर को भी लेते जाना जो आपको दुनिया में बहकाते रहे, कहने मैं तो जा रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी चल, वहां मुझे कौन बचाएगा जब फरिश्ते सवाल करेंगे। है कोई इंसान जो जाने के लिए तैयार हो जाएगा? तैयार नहीं होगा। तो कभी कभी ये इस किस्म के जो सवालात हम पैदा करते हैं, ये सवालात गलत है, ये सवालात गलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का घर अलग होता है, हमारा अपना घर अलग होता है। अगर अल्लाह के घर की बराबरी करने के लिए आते तो पता नहीं कितने बादशाह सलातीनों का महल उठा करके देख लो कि जिनके यहाँ टॉयलेट वगैरह भी सोने के बने हुए हैं। लेकिन अल्लाह के घर में अब ये कहे मेरा घर उससे बुलंद है तो हो सकता है? पतान नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का घर अल्लाह का घर है, तेरा घर वक्ती घर तेरा घर है। आज तू जिंदा है तो तेरा है, मर गया तो तेरी औलाद का, तेरी औलाद मर गई उसके बाद उसकी औलाद का। तो जिस पर तू दावेदारी कर रहा था जब तेरा ही वही नहीं है तो जो अल्लाह का अल्लाह का घर है उस पे दावेदारी तेरी कहां से वो चलेगी? आप जरा तो सोचिएगा। यानी जब हमारा अपना घर, हमारे नाम की रजिस्ट्री, हमारे नाम की दाखिल खारिज सब कुछ, और हमारी आंख बंद हुई, मेरा खत्म, अब औलाद तक ट्रांसफर, औलाद मर गई उसके बाद उसकी औलाद पर ट्रांसफर। और अल्लाह का घर ये हमेशा अल्लाह का घर ही कहलाएगा। अब जो भी अल्लाह के घर से पंगा लेना चाहे या ले ले तो वो इतना हौसला रखे जितना हौसला अबरहे को था।
इतना हौसला रखे जितना हौसला अबरहे को था कि वो हाथियों का लश्कर लेकर के आया था, लेकिन हारा किसे? अबाबील की कंकरियों से। कि कुरान के बकौल का आसफिम माकूल, यानी चबाए हुए भूसे के मानिंद ये हो गए, ना ये रहे ना इनका वजूद रहा, बल्कि तारीख के लिए हमेशा लिख गया कि जो भी अल्लाह के मुकाबले में, उसके घर के मुकाबले में आएगा, उसे मिटना ही है, उसे फना होना ही है। एक सलवात पढ़िए सब। अब आप जरा सा समझिए हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमारी जिम्मेदारियां यही है कि आज हमारे पास जो भी असबाब हों, कुछ कर गुजरने के और कर सकने के, आप कर जाइए, कर गुजरिए। क्या पता आज मौका हो, कल मौका ना हो। मसलन जैसे हज का जमाना, आज इस वक्त हज 6 लाख कुछ हजार, यानी 4 लाख कुछ हजार में एक आदमी का हज हो रहा है, 4 लाख 6 हजार कुछ रुपए। अब जिनके बैंक बैलेंस 4.5 लाख रुपए है, वो मुस्तती हैं, वो मुस्तती हैं। मेरी बात समझिएगा, वो मुस्तती हैं। अब चाहे वो डिपॉजिट की सूरत में हो, चाहे बैंक में सेविंग की सूरत में हो, चाहे वो मुनाफे की सूरत में हो, चाहे वो किसी चीज की सूरत में हो, अगर इतना है तो आप मुस्तती हैं। अब अगर इसके बाद आप कंगाल हो जाए, समझिएगा, कंगाल हो जाए, मेरे पास खाने तक को नहीं बचा, तो अल्लाह के ऊपर कल जो तुम्हारे ऊपर मुआखदा किया जाएगा, वो किस चीज का किया जाएगा? कि तुम मुस्तती थे और हज नहीं किया, तुम मुस्तती थे और हज नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हमने तुम्हें इस्तिताअत दी, और ये कंडीशन होने के बाद अब तुम गैर मुस्तती हो जाओ, तो ये वाजिब तुम पर से साकित नहीं होगा, ये तुम पर से साकित नहीं होगा। ये तो मैंने एक मिसाल दी। अब इसी तरीके से आप आइए, समाज की मिसाल देता हूं कि अगर यदि समाज में आप कुछ कर सकना चाहते हैं, यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, आने वाली कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हो? आज बच्चों को मस्जिद और इमाम बारगाह की जरूरत नहीं है। बच्चों को जरूरत उनकी बेसिकली जरूरियात को पूरा करने के लिए जो चीजें हैं वो हैं। यानी आज इंसान अपने घर में मजलिस और मातम तो कर सकता है, लेकिन अपने घर में चाहे तो एजुकेशन हासिल कर सकता है? नहीं। अपने घर में चाहे तो तालीम हासिल कर सकता है? नहीं। और अगर पढ़ भी ले और किसी बोर्ड से एग्जाम ना दे, क्या उसे पढ़ा लिखा कहेंगे? हो सकता है खुद मुंह मियां मिट्ठू तो हो जाए, लेकिन जब तक वो किसी चीज का डिग्री होल्डर नहीं होगा, उसके ऊपर सनद नहीं होगी, साहब आप पढ़े लिखे हैं, बोलो आपकी नॉलेज कितनी हो, आपकी सलाहियत कितनी हो, आपकी काबिलियत कितनी हो, आप कुछ भी हो, लेकिन नहीं कहा जाएगा। तो आज जरूरत किस चीज की है? इसी चीज की है कि कुछ कर गुजरने की है। आज मेरा सवाल फिर मैं कह रहा हूं, जाकर के नोट कर लीजिएगा और उन अफराद तक पहुंचा दिएगा जो आज कौम के पैसों के ऊपर अपने पंजे गड़ाए बैठे हैं। ये कल भी गासिब थे, आज भी गासिब होंगे। समझिएगा, मेरा मैसेज दूर तक जाना चाहिए। ये कल भी गासिब कहलाएंगे, आज भी गासिब कहलाएंगे, मगर ये कि जितना पैसा शरई है वापस कर दे, वरना जब तक उसके मकान के अंदर, दुकान के अंदर, घर के अंदर रहेंगे, ना नमाज होगी, ना हज होगा, ना मजलिस होगी, ना मातम होगा, ना रहना जायज होगा, ना नहाना जायज होगा, ना गुस्ल करना जायज होगा, ना यकीन हो तो जाकर के आयात इज़ाम से मसला पूछ लेंगे। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। समझिएगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और जिसको ना समझ में आया कुरान हदीस रिवायात सब आकर के समझ लेगा। क्योंकि आज हमारे यहाँ बहकाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, कि मतलब कि साहब इतना पैसा नहीं, हम इनको नहीं दे सकते, उनको। आज जमीन पड़ी हुई है, कितने साल हो रहे हैं? 12 साल से ऊपर हो रहे हैं, 12 साल से ऊपर हो रहे हैं तकरीबन लिए हुए।
पैसा मौजूद होते हुए भी अगर कोई सेंटर ना बन पाए तो किससे कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? यही कहा जाएगा साहब हम इस पार्टी के थे, हम उस पार्टी के थे, हम इस जगह के थे, हम उस जगह के थे। मियाँ जिन्होंने लिखा पढ़ी में जिनके मकानात के पैसे दिए जा चुके हैं, है कौम में से जो निकल करके गया हो आज मकान लेने के लिए? या पैसा वापस करो या मकान वापस करो, बताइए जरा सा। और उसके बाद खाली लड़ने के लिए आपस में एक एक प्लेट के ऊपर, एक एक कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, एक एक गिलास के ऊपर, एक एक पानी के ऊपर झगड़ा करने के लिए तैयार हो। बड़े बड़े मिशनों को इसीलिए मिसगाइड किया जाता है ताकि छोटी छोटी बातों में उलझे रहना, बड़े बड़े हदफ से तुम भटके रहना, ताकि छोटी छोटी बातों में उलझाया जाएगा, ताकि तुम इसी में लड़ते मरते रहो, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहो, ताकि ये चीज न कोई पुकारेगा। और अगर अल्लाह ने आंख बंद करा दी, आखिरी बात कह रहा हूं, अल्लाह ने अगर आंख बंद करा दी तो जो मकान मेरे नाम है, मस्जिद के पैसे का या किसी भी चीज का, तो वो नाम का भी गासिब मैं ही कहलाऊंगा। अब ये औलाद दे या ना दे, तो इससे बेहतर यह है कि अपनी जिंदगी में उन चीजों को करके चले जाओ जो अख्तियार तुम्हें अल्लाह ने दे रखा है। वरना कल कयामत के दिन कोई बच नहीं सकता कि ये ऐसे था, वो ऐसे था, इट बट चूं चरा कहने के कोई कंडीशन हो, कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि जरूरत आज जो ही वासियों को जिस चीज की है वो एजुकेशन सेंटर की है, और सेंटर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। समझ रहे? तो ये चीजें क्या है? ये चीजें आज हमें बताती हैं कि हम इन चीजों तरफ अपनी जिम्मेदारियों तरफ क्या करें, अमल करते रहें। और जब हम अपनी जिम्मेदारियों तरफ अमल करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए चले जाएंगे तो कल हम जिंदा रहेंगे। भलो हम मर करके चले जाएं, लेकिन वैसे ही जैसे फितरत के साथ से भी इनको वलो कितनी हुकूमतों ने लौटाया, दिया, खाया, पिया, इस्लाम में लगाया, लेकिन जो गासिब था वो गासिब है और हमेशा क्या रहेगा? रहेगा। तो अब जाकर के पलट करके वो अफराद पूछने जिनकी गर्दनों पर 1 रुपया भी अगर किसी कौम का और समाज का रहेगा, वो गासिब ही कहलाएंगे, ईमानदार नहीं कहलाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला रसूल मुस्तफा व हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफर मुहम्मद व हुसैन जाफर व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार बिद व तुग़यान व हाद बि अमरति शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस पर से इबादत कबूल फरमा लेना। हम लोग इस मकसद में, जिस मिशन में लगे, उसमें कामयाबी फरमा देना।